Assalamu alaikum. So today we are going to take applications of equilibrium constant. What are the applications of equilibrium constant? Equilibrium constant के applications के क्या हैं? ये हमें कहाँ इसको हम कहाँ अप्लाई करते हैं? किन चीजों को निकालने के लिए डिटरमाइन करने के लिए हम इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम इस्तेमाल करते हैं? तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की है दैट इज we are predict it is used in predicting the extent of reaction, the extent of reaction किस हद तक हो चुकी है, किस हद तक प्रोडक्ट्स बन गए हैं, किस हद तक कितने कितनी अमाउंट रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट्स में तब्दील हो गई है। इस चीज को निकालने के लिए अगर हमें ये डिटरमाइन करना होगा कि हाउ मच प्रोडक्ट amount of products has been formed before the equilibrium has attained, or how much extent the reactants have converted into the products. For this we can use this equilibrium constant. ये equilibrium constant इस चीज को निकालने के लिए हमें मदद देता है. So we are saying that it is used in predicting the extent of reaction. तो यहाँ पे हम कहते हैं the magnitude of इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है, इसका जो वैल्यू होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट gives information about the extent of reaction, about the extent of reaction that is, so how much amount reactants have converted into products, or we can say what is the concentration of products at equilibrium state, or to how much extent the reactants have converted into the products. इस चीज को निकालने के लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस चीज के लिए हमें इंफॉर्मेशन देता है. इसको हम अप्लाई करते हैं ये चीज निकालने के लिए कि किस हद तक रिएक्शन हो चुकी है when the equilibrium state is attained. For example, it has been observed that when Kc, we have three cases here. When Kc equilibrium constant, or we can write Kp, or we can write Kp in terms of partial pressures, equilibrium constant in terms of partial pressures, equilibrium constant in terms of molar concentration. When Kc or Kp is more than 10 raised power 3, when the value of this equilibrium constant is greater than 10 raised power 3, remember this point. When the value of equilibrium constant or this Kc or Kp is greater than 10 raised power 3, we are saying that larger amount of products are formed. Larger amount of products is formed. Or we can say that the reaction has proceeded to completion, that almost all the reactions have converted into the products. Larger amount of products are formed. So we are saying that there is larger concentration of products than that of reactants when we have equilibrium constant greater than 10 raised power 3. जब 10 raised power 3 से ज्यादा वैल्यू होता है equilibrium constant का, so we can say at that time concentration of the products is very large. Concentration of the products is very large. That is, the equilibrium has almost the reactants have almost converted into products completely. Almost all the reactants have converted into products completely. Number 7 point, we are saying that when Kc or this Kp, या Kc हम कहेंगे या Kp कहेंगे, is less than 10 raised power minus 3.
जब इसका वैल्यू लेस देन 10⁻³ होता है, that is at that time this amount of concentration of products हम कहते हैं amount of products या आप कहते हैं concentration of products is very small. तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होती है उस वक्त जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज वेरी स्मॉल. दैट इज वी आर सेइंग that lesser amounts of reactants have changed into the products when the equilibrium has attained. जब इक्विलिब्रियम उस रिएक्शन में होता है, डेवलप होता है, तो उस वक्त क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज वेरी स्मॉल at the equilibrium stage, or we can say the reactants have converted into the products in a very smaller amount. Number third case, we are saying that when Kc, or we can write Kp, is equal to is in between 10 raised power -3 to 10 raised power +3, 10 raised power -3 to 10 raised power +3. जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू इसके दरमियान होता है, तो वी आर सेइंग दैट इज देयर इज कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, comparable concentration, we can say comparable concentration of reactants and products. तो उस वक्त हम क्या कहते हैं, we are saying that the concentration of reactants is almost equal. तो जब इक्विलिब्रियम स्टेट, जब वो सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन करती है, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कंसंट्रेशन होती है 10⁻³ to 10⁻+3, we are at that time saying that half of the reactants have changed into products, or we can say 45% reactants have changed into the products, or we can say 55 this 49%, almost 49% of the reactants have changed into the products. We are saying that there is almost equal concentration of the reactants and the products. But these are the three things that we are getting, that we are saying this is the application, first application of this equilibrium constant, is that it is used in predicting the extent of the reaction, to how much extent the reaction has taken place, to how much extent the reactants have changed in the products, how much concentration is the products formed at the equilibrium state, or how much amount of reactants have changed in the products. That information we are getting from these values. We are saying then when equilibrium constant is greater than 10⁻³, we are saying at that time almost all the reactants have changed in the products. That is, there is larger concentration of products at the equilibrium state. And when the equilibrium constant is less than 10⁻³ we are saying that there is very little concentration of the products. That is, at the equilibrium state there is larger concentration of reactants and very smaller concentration of products. And when the equilibrium constant is in between 10⁻³ to 10⁻+3, we are saying there is a comparable there are comparable amounts of reactants and products. We will show here some reactions. We will give examples of some reactions with the help of which we can say to how much extent the reactants have changed into the products. Suppose we are taking a reaction between H2 and O2. H2 gas and O2 gas के दरमियान जब रिएक्शन की जाती है, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है 2H2 वाटर, यहाँ पर हमें हासिल होता है. तो एट 500 केल्विन जब टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं 500 केल्विन, it has been observed that equilibrium constant Kc for this reaction is equal to 2.4 into 10⁻47. 10⁻47. इसका मतलब हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा है. हम कहते थे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब 10⁻³ के बराबर होगा, so we are saying that there is larger concentration of products. When the equilibrium constant is equal to 10⁻47, it means that this reaction almost proceeds to completion. Almost all the amount of reactants is changed into the products.
तो यहाँ पर हम कहते हैं जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, इसका वैल्यू बहुत बड़ा ज्यादा होता है, तो वी आर सेइंग दैट ऑलमोस्ट ऑल द reactants have converted into the products. So that means at the equilibrium state there will be 99%, 95% concentration of the products and very smaller concentration of the reactants. So we are saying that when the equilibrium constant is very large, the reaction proceeds to almost completion. तो सेकंड एग्जांपल हम देंगे, ये पहली एग्जांपल है. सेकंड एग्जांपल वी विल टेक ऑफ when the equilibrium constant is very small. When we are heating this water, जब हम वाटर को हीट करते हैं तो वी आर गेटिंग, तो हम क्या हासिल करते हैं H2 प्लस O2, H2 प्लस O2. तो H2 प्लस O2 बनता है, we will take twice this, तो H2 प्लस O2 बनता है at 500 केल्विन. ये रिएक्शन भी हम करते हैं 500 केल्विन पर, टेम्परेचर हम रखते हैं 500 केल्विन. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज इक्वल टू 2.6 into 10 raised power -48. तो इसका मतलब हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेरी स्मॉल है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी स्मॉल, इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एक्सट्रीमली स्मॉल. तो जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत कम होगा, that means very few molecules of this water have changed into H2 and O2. That means at the equilibrium state there will be larger concentration of water molecules than H2 and O2 molecules. तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये जो रिएक्शन है, प्रोडक्ट्स बहुत कम अमाउंट में बन गए हैं. तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा, ऑलमोस्ट ऑल द these molecules will be in the reactant state will be in the form of water molecules. तो बहुत कम वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कन्वर्ट होते हैं H2 और O2 में. तो याद रखना आप you have to remember this point that when equilibrium constant is very small, that it shows that the reaction has proceeded in the forward direction to a very small extent. So that means the concentration of the reactant is very large as compared to that of the products. तो तीसरी एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे और एक रिएक्शन की twice H2, H2 plus O2, H2 plus I2, H2 plus I2 gives HI, twice HI, gives twice HI. तो अगर हम इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखते हैं तो एट 500 केल्विन, 500 केल्विन, 700 केल्विन, at 700 Kelvin. 700 Kelvin temperature, equilibrium constant for this reaction has been found to be 57. Equilibrium constant इसका क्या है, 57 के बराबर है. Equilibrium constant is equal to 57. That means यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो देखा गया है, इट इज इक्वल टू 57. इसका मतलब हो गया यहाँ पर कंपेरेबल कंसंट्रेशन होगी किसकी, H2, I2 और twice HI की. वो दैट मीन्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स हैव कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स. यहाँ पर जो कंसंट्रेशन होगी 50, ऑलमोस्ट 50% के करीब इसकी कंसंट्रेशन होगी, इनकी कंसंट्रेशन होगी. तो यहाँ पर हम कहते हैं कि जब रिएक्शन प्रोसीड होती है, जब कंसंट्रेशन होती है कंपेरेबल अमाउंट में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, तो एट दैट टाइम when the equilibrium constant is in between the 10⁻³ to 10⁻+3, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर है, 57 के बराबर है. तो दैट मींस इट इज इन बिटवीन 10⁻³ to 10⁻3. तो यहाँ पर हम कहते हैं कि almost half of the reactants have converted into the products. वो there will be comparable concentration of, यानी इसका मतलब होगा कि कंसंट्रेशन HI, I2 और H2 की तकरीबन बराबर होगी. वो अगर डिफरेंस भी होगी, बहुत कम डिफरेंस होगी, ऑलमोस्ट कंसंट्रेशन हर एक रिएक्टेंट और हर एक प्रोडक्ट की यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम रहती है. तो दिस इज इंफॉर्मेशन दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम this is first application of this equilibrium constant, that it helps us in predicting the extent of the reaction. किस हद तक कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, किस हद तक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स बनती है, किस हद तक रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में. तो इस चीज को निकालने के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सहारा लेते हैं. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से हम ये कहते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट्स में, या कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स बन गया है, या किस अमाउंट में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है इक्विलिब्रियम स्टेट पर, इक्विलिब्रियम स्टेज पर.
तो जितना मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा उतना प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। जितना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कम होगा उतनी प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कम होगी एट इक्विलिब्रियम स्टेट। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन जो इसकी है, इट इज यूज्ड इन प्रिडिक्टिंग। ये हमें मदद देता है किस चीज को बताने के लिए, इन प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, वेदर द रिएक्शन प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन, या रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। तो इस चीज को निकालने के लिए, इस चीज को बताने के लिए हमें मदद देता है कौन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें इंफॉर्मेशन देता है कि रिएक्शन रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में किसी स्टेज पर चली जाएगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट्स में या प्रोडक्ट्स कन्वर्ट हो जाएंगे रिएक्टेंट्स में। ये चीज निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम यहाँ पर अप्लाई किया जाता है कि किस डायरेक्शन में कोई रिएक्शन चली जा सकती है, किस डायरेक्शन में चली जाएगी। तो वी कैन से दैट दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इट हेल्प्स इन predicting whether in which direction the reaction proceeds, whether the reaction proceeds in forward direction or it proceeds in backward direction at any stage, at any stage. So for this we are using another constant that is called concentration quotient. Quotient, quotient की स्पेलिंग है QUOTIENT, quotient, और हम इसको कहते हैं रिएक्शन कोस्टेंट, रिएक्शन कोशेंट, QUOTIENT, कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट या कंसंट्रेशन कोशेंट, QC हम रिप्रेजेंट करते हैं या QP से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज QC concentration quotient when we are taking molar concentration, and QP concentration quotient या reaction quotient when in terms of partial pressures, in terms of partial pressures। तो दूसरी एप्लीकेशन जो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की है, दूसरी एप्लीकेशन जो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है ये हमें इंफॉर्मेशन देता है, ये हमें लगता है किस चीज में, टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, किस डायरेक्शन में रिएक्शन चली जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो इस चीज को देखने के लिए, इस चीज को बताने के लिए हमें ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हमें जरूरत पड़ती है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, we can say equilibrium constant is used, it helps us to predict the direction of the reaction, helps us to direct the direction of the reaction, that is in which direction the reaction takes place. So we are using another constant here, that is concentration quotient or reaction quotient, which we represent with the help of QC or QP, जो हम QC या QP की मदद से जरिए से हम डिजिग्नेट करते हैं। तो ये कंसंट्रेशन कोशेंट या एक रिएक्शन कोशेंट क्या होता है, ये कंसंट्रेशन कोशेंट और रिएक्शन कोशेंट बिल्कुल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, जिस तरह से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं, Kc या Kp को डिफाइन करते हैं, इसी तरह हम डिफाइन करते हैं कंसंट्रेशन कोशेंट को या इक्विलिब्रियम को या रिएक्शन कोशेंट को भी। मगर सिर्फ यहाँ पर एक डिफरेंस होती है, कंसंट्रेशन कोशेंट का मतलब हो गया concentration of various species, concentration of various species, reactants and products at any stage of, at any stage, at any stage of the reaction, at any stage of the reaction, at any stage of the reaction। जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन के किसी स्टेज पर अगर हम देखेंगे, what is the concentration, what is the concentration of the reactants and the products। तो फॉर दिस वी आर राइटिंग कंसंट्रेशन कोशेंट और रिएक्शन कोशेंट। तो जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम अप्लाई करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स,
एट इक्विलिब्रियम स्टेट, तो यहाँ पर डिफरेंस है कंसंट्रेशन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दरमियान एक डिफरेंस है। डेफिनेशन इनकी ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस है। कंसंट्रेशन कोशेंट वी आर टेकिंग और रिएक्शन कोशेंट एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन, किसी भी स्टेज पर, रिएक्शन के किसी भी स्टेज पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की क्या है, उनकी प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या है। तो मगर जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं, इट इज एट द इक्विलिब्रियम स्टेट, इट इज एट द इक्विलिब्रियम स्टेट। लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन फॉर ए, we will take a reaction A plus B gives C, we can write it at any stage, gives C plus D. तो कंसंट्रेशन क्वोशेंट हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यूसी हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यूसी विल बी इक्वल टू C raised power C into D raised power D divided by A raised power A raised power A into B raised power B raised power B। तो it is at any stage of reaction, किसी भी स्टेज पर। ये इक्विलिब्रियम स्टेट यहाँ पर कंडीशन नहीं है, यहाँ पर रिएक्शन कोशेंट या जो कंसंट्रेशन कोशेंट है, यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम, जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगी तब हम कंसंट्रेशन कोशेंट निकालेंगे ना, ये ऐसी बात नहीं होती है। कंसंट्रेशन कोशेंट किसी भी स्टेज पर, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स क्या है, वो चीज निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक और कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं क्यूसी और क्यूपी। मगर ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब होगा कंसंट्रेशन एट द इक्विलिब्रियम स्टेट, कंसंट्रेशन एट द उस वक्त इक्विलिब्रियम स्टेट जरूरी है। यहाँ पर किसी भी स्टेज पर, किसी भी स्टेज पर, मिसाल के तौर पर रिएक्शन एक हम करते हैं, इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में 10 मिनट लगेंगे। अगर हम कंसंट्रेशन देखेंगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स और कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन देखेंगे, 2 मिनट के बाद देखेंगे, 3 मिनट के बाद देखेंगे, 4 मिनट के बाद देखेंगे। अगर ये रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल इक्विलिब्रियम स्टेट पर पहुंचती है 10 मिनट के बाद, तो अगर 10 मिनट के बाद हम कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की देखेंगे तो वो हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मगर अगर हम यही रिएक्शन करेंगे तो 3 मिनट के बाद हम देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स की, 4 मिनट के बाद हम देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की। तो जब हम किसी भी स्टेज पर देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स, तो इनका जो हम लेते हैं रेशो फिर इनके प्रोडक्ट्स का, तो वो हमें देता है कौन सा कंसंट्रेशन कोशेंट। वो कंसंट्रेशन कोशेंट का मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द रिएक्शन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स at any stage of the reaction, not at the equilibrium state, then we are saying, फिर हम कहते हैं अगर if QC, अगर QC है इक्वल टू KC, अगर QC है इक्वल टू KC, अगर अब QC किसके बराबर है, KC के बराबर, तो we can say the reaction has proceeded to equilibrium, the reaction both फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। उस वक्त हम कहेंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी, दे विल बी एट इक्वल रेट, बोथ रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम। तो उस वक्त हम कहेंगे रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम, वी कैन से रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम। इफ क्यूसी, अगर क्यूसी किसके बराबर है, केसी के बराबर, तो हम कहेंगे रिएक्शन किस पे है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। दैट मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रिमेंबर दिस पॉइंट, ये चीज आपको याद रखना चाहिए। क्या है, प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें इंफॉर्मेशन देता है कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है, whether the reaction takes place in forward direction, whether the reaction takes place in backward direction, or whether the reaction has attained the state of equilibrium।
तो ये चीज निकालने के लिए हम और एक टर्म की इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कंसंट्रेशन कोशेंट। कंसंट्रेशन कोशेंट या रिएक्शन कोशेंट। कंसंट्रेशन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिल्कुल एक जैसी होती है, ये इनकी डेफिनेशन सेम होती है, मगर यहाँ पर कंसंट्रेशन कोशेंट की डेफिनेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन में सिर्फ एक चीज का फर्क है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लेते हैं एट द इक्विलिब्रियम स्टेट, मगर कंसंट्रेशन कोशेंट या रिएक्शन कोशेंट हम लेते हैं एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन। किसी भी स्टेज पर देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मोलर रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द मोलर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट ऑफ मोलर रिएक्टेंट्स क्या है, तो उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन कोशेंट या रिएक्शन कोशेंट। तो ये एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन, एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन। तो कंसंट्रेशन कोशेंट हम निकालते हैं। जब हम कंसंट्रेशन कोशेंट निकालते हैं फिर हम देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है इस रिएक्शन का। अगर कंसंट्रेशन कांस्टेंट कोशेंट कंसंट्रेशन कोशेंट या रिएक्शन कोशेंट बराबर होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, तो हम कहते हैं कि रिएक्शन किस स्टेज पर है इस वक्त, रिएक्शन है इक्विलिब्रियम स्टेट पर। दैट मींस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट। नाउ सेकंड केस, इफ QC अगर कंसंट्रेशन कोशेंट ग्रेटर देन KC है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से बहुत ज्यादा है कौन, कंसंट्रेशन कोशेंट, तो वी आर सेइंग द रिएक्शन प्रोसीड्स इन रिवर्स डायरेक्शन, इन रिवर्स डायरेक्शन। रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी। दैट मींस more and more products are breaking down to form the reactants। मगर मकसद क्या होता है, ताकि उसका वैल्यू भी QC का वैल्यू भी KC के बराबर आ जाए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आ जाए। तो रिएक्शन प्रोसीड्स इन द रिवर्स डायरेक्शन। दैट मींस the backward reaction takes place। Products are breaking down to form the reactants। So you must remember that if QC is greater than KC, the reaction proceeds in reverse direction। Number third case we are saying if QC is less than KC। अब अगर QC क्या है, less than KC, then the reaction proceeds, तो उस वक्त क्या होता है, reaction proceeds in forward direction। रिएक्शन प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। दैट इज मोर एंड मोर रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स। मगर मकसद क्या होता है, मकसद होता है कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पर पहुंच जाए। तो रिएक्शन प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन से दैट with the help of this equilibrium constant we can predict the direction of the reaction। we are calculating the values of QC। तो जब हम QC के वैल्यूज देखते हैं तो उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, फिर हम कहते हैं कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, या रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पर होगी। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के जरिए आपको ये चीजें मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो वी आर टेकिंग अ रिएक्शन, हम एक रिएक्शन ले रहे हैं यहाँ पर H2 plus I2। H2 plus I2 gives twice HI। तो किसी स्टेज पर हम ये रिएक्शन कर रहे हैं, तो उस स्टेज पर क्या है, व्हाट एज दैट एट दैट स्टेज 0.1 मोल्स है कंसंट्रेशन किसकी, H2 की। 0.2 मोल्स है कंसंट्रेशन किसकी, तो I2 की। और 0.4 मोल्स है कंसंट्रेशन किसकी, दिस HI की। We are performing a reaction H2 plus I2 gives twice H। हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट कर दें तो बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये रिएक्शन we are determining the values at any stage of the reaction। we are seeing that H2 उस स्टेज पर H2 की कंसंट्रेशन क्या होती है, 0.1 मोल्स होती है। I2 की कंसंट्रेशन क्या होती है, 0.2 मोल्स होती है। HI की कंसंट्रेशन क्या होती है, 0.4 मोल्स होती है। तो इस रिएक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन कोड। तो और मैंने अभी आपको बताया कि जब हम रिएक्शन करते हैं H2 plus I2 के दरमियान,
तो ये इक्विलिब्रियम स्टेज पर जब पहुंचती है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू इसका कितना होता है, 57। क्या होता है, 57। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। ये अभी मैं आपको बता रहा था जब मैंने आपको बताया कि हाउ कैन वी प्रिडिक्ट द एक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो उस वक्त मैंने एक एग्जांपल आपको बताई कि जब कुछ रिएक्शन जिनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है 10⁻³ टू 10⁻+3 के दरमियान, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻³ टू 10⁻+3 के दरमियान है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू 57 है। तो अब हम यही रिएक्शन करते हैं एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद बेसिस पर हम ये रिएक्शन करते हैं। तो किसी स्टेज पर हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ H2 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ I2 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ HI क्या है। तो किसी स्टेज पर रिएक्शन की हम देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H2 इज 0.5 to 1 मोल्स, I2 इज 0.2 मोल्स, HI इज 0.4 मोल्स। तो कंसंट्रेशन कोशेंट इस रिएक्शन के लिए किस के बराबर होगा, सो वो HI raised power 2 divided by molar concentration of H2 into molar concentration of I2. So this will be the concentration quotient for this reaction. For this reaction. तो HI किसकी इसकी concentration क्या है? इसकी concentration है 0.4 moles at any stage, वो 0.4 raised power 2 divided by 0.1 0.1 into 0.2 into 0. Substituting the values of H2 and I2 here 0.1 into 0.2, तो वो हो गया 4 हो गया 16, so 1.16 divided by 0.2, we can write, so वो हो गया equal to 16 divided by 2, that is equal to 8। तो कंसंट्रेशन कोशेंट का वैल्यू किसके बराबर आएगा, 8 के बराबर आएगा। मगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू क्या है, 57। तो दैट मींस कंसंट्रेशन कोशेंट का वैल्यू कम है, कंसंट्रेशन वैल्यू कोशेंट का वैल्यू कम है देन Kc। विद दिस मींस दैट Kc QC that QC is less than Kc is less than Kc। तो आप अभी हमने आपको बताया जब QC का वैल्यू कम होगा देन Kc, then the equilibrium will proceed in the forward direction। इसका मतलब हुआ इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में, ये इक्विलिब्रियम किस रिएक्शन किस डायरेक्शन में चली जाएगी, रिएक्शन चली जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब होगा ज्यादा से ज्यादा H2 और I2 कंबाइन हो जाएगा टू फॉर्म HI। तो उस वक्त तक ये रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी जिस वक्त तक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 57 ये आएगा। तो जब 57 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज को पहुंचेगी। तो दिस इज हाउ वी कैन से दिस QC, दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट value gives us information about the to how much to in which direction the reaction proceeds. So you must remember that if QC is less than Kc, then the reaction proceeds in the forward direction. That is, more and more reactants will react to form the products till it reaches the stage of equilibrium state. तो अगर QC का वैल्यू ज्यादा है than this Kc, then the equilibrium will shift in the backward direction। तो यहाँ पर जो ये वैल्यूज दिए गए इसका QC हमने निकाला, QC का वैल्यू कम है than equilibrium constant, we can say that the reaction will proceed in the forward direction। So this is another application that it is used in predicting the direction of the reaction। Equilibrium constant हमें information देता है to predict the direction of the reaction। किस डायरेक्शन में रिएक्शन चली जाएगी, किस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। नंबर थर्ड एप्लीकेशन जो इसकी है, थर्ड एप्लीकेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ equilibrium constant, or calculating concentration of equilibrium constant, concentration of equilibrium constant। equilibrium constant निकालने के लिए और calculating equilibrium concentration, we can say equilibrium concentration, equilibrium concentration। What is the concentration of the reactants and the products at the equilibrium state? इक्विलिब्रियम स्टेट जब पहुंचती है तो उस इक्विलिब्रियम स्टेट पर
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की क्या है, किस रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन है, किस प्रोडक्ट की कितनी कंसंट्रेशन है। तो अगर आपको ये चीज निकालना होगा तो ये चीज निकालने के लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मदद देता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आल्सो हेल्प अस इन कैलकुलेटिंग द concentration of the various reactants and the products when the reaction has attained the state of equilibrium। जब equilibrium state पर reaction पहुंचती है तो बहुत सारे जो reactants और products इसमें reaction में involve होते हैं उनकी concentration क्या होती है इक्विलिब्रियम स्टेट पर। इस चीज को निकालने के लिए हमें कौन सा चीज मदद देता है, कौन सा चीज हम अप्लाई करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालने के लिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की वी आर फॉलोइंग सर्टेन रूल्स। हमें कुछ चीजों को पहले निकालना पड़ता है। तो जब हम निकालते हैं तब जाके हम कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट निकालते हैं एट द इक्विलिब्रियम स्टेट, एट द इक्विलिब्रियम स्टेट। तो पहला चीज जो हमें इंफॉर्मेशन, जिस चीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पहले कौन सा चीज हमें मालूम होना चाहिए, तब जाके हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो नोइंग द वैल्यू ऑफ, नोइंग द इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन of each reactant, of each reactant, ये चीजें आपको याद रखनी है। अब each reactant and product can be determined, can be determined, can be determined, can be determined as, क्या कैसे हम पहले हमें मालूम होना चाहिए इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की क्या है। जब हमें इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की मालूम होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन उनकी क्या है, तब जाके हम निकाल सकते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, तब जाके हम निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम स्टेट, एट इक्विलिब्रियम स्टेट। कैसे, एज नंबर फर्स्ट थिंग, जो पहला चीज याद आपको याद रखना है, व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू डू। फर्स्ट आपको क्या करना है, राइट द बैलेंस्ड, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपको पहले लिखना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। जो रिएक्शन हो रही है, जो रिएक्शन हो रही है, इसको आपको क्या करना है, पहले आपको इसके लिए केमिकल इक्वेशन लिखनी है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है फॉर द रिएक्शन। Write the balanced chemical equation for the reaction. For example, we are saying hydrogen and oxygen, hydrogen and nitrogen combines to form ammonia. Hydrogen and nitrogen combines to form ammonia. तो हम रिएक्शन लिखते हैं H2 plus N2 gives ammonia। तो पहले हमें ये बैलेंस करनी है, we have to balance it। We will write here 3 times H2, यहाँ पर लिखेंगे हम twice H2। ये हो गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो पहले जो रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, हमें पहला चीज जो मालूम होना चाहिए वो है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हमें मालूम होनी चाहिए। तो जब हमें इनिशियल कंसंट्रेशन मालूम होगी तब जाके हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की निकाल सकते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेज पर हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी। तो इस चीज को निकालने के लिए, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहले हमें लिखनी है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। जो रिएक्शन इन्वॉल्व होती है उसके लिए हमें लिखनी है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद दूसरा पॉइंट हम क्या करते हैं, व्हाट वी आर डूइंग, अनदर पॉइंट, दैट इज we are assume assume x, assume x as the amount of reactants, reacted or products formed, or
तो दूसरा चीज हम क्या करते हैं, वी आर सेइंग दैट अगर हमने ये रिएक्शन लिखी N2 + H2, N2 + H2 गिव्स अमोनिया, तो हम कहते हैं कि चलो X के बराबर प्रोडक्ट्स बन गए, X के बराबर प्रोडक्ट्स बन गए, या X amount of reactants have converted into the products, X amount of reactants have changed into the products, X amount of reactants have reacted, X amount of reactants have reacted. तो दूसरा चीज हम अज्यूम करते हैं कि चलो हम बताएंगे जो प्रोडक्ट्स बन गए उनकी अमाउंट कितनी है, X के बराबर, या हम कह दें कि जो कितने रिएक्टेंट्स रिएक्ट हुए हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन तो हमें मालूम है, कितने रिएक्टेंट्स के रिएक्ट हुए, X के बराबर रिएक्ट हुए, कितने H2 का, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के जरिए हम कहेंगे कि अगर N2 के बराबर X N2 X अमाउंट के बराबर रिएक्ट हुआ है तो H2 कितने अमाउंट के बराबर रिएक्ट हो जाएगा, वो हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के जरिए हमसे बता सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट हम क्या कहते हैं, व्हाट वी आर राइटिंग, तो कैलकुलेट, थर्ड पॉइंट कैलकुलेट the equilibrium concentration, calculate the equilibrium concentration of each reactant or product and product from the stoichiometry of the reaction, from the stoichiometry of the reaction, stoichiometry of the reaction. तो पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, यू हैव टू राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। दूसरा चीज आपको क्या करना है, यू आर सेइंग दैट X amount of reactants have changed, have reacted, X amount of let X amount of the reactants have reacted, or X amount of products have formed, X amount of products have formed। तीसरा चीज हम क्या करते हैं, फिर हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लिखते हैं, वी आर कैलकुलेट, फिर हम कैलकुलेट करते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फ्रॉम द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। मिसाल के तौर पर अगर हम ये लिखेंगे N2 + 3 times H2 gives twice NH3, तो हम कहते हैं कि अगर X अमाउंट के बराबर N2 रिएक्ट हो गए तो ये H2 किस अमाउंट के बराबर रिएक्ट हुआ है वो हम ऑन द बेसिस ऑफ स्टोइकियोमेट्री बता सकते हैं। या यहाँ पर when 1 mole of this reacts, 1 mole of this N2 reacts, it forms 2 moles of NH2। तो अगर X मोल्स रिएक्ट हो गए तो 2X मोल्स इसके बनेंगे, तो अगर यहाँ पर कंज्यूम हो गए, X मोल्स कंज्यूम हो गए तो इसके कितने मोल्स कंज्यूम हो जाएंगे, तो दैट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। तो जब हम एग्जांपल्स स्टार्ट करेंगे एग्जांपल्स, तो जब हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालेंगे एग्जांपल्स के जरिए, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, तो उस वक्त आपको समझ आएगा कि किस तरह से हम ये थर्ड पॉइंट निकालते हैं, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फ्रॉम द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। Number fourth point is what we are doing, write expression, we are writing expression, write expression, फिर हम expression लिखते हैं किसके लिए, write expression for Kc और Kp। हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है या इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर्स के लिए हम एक्सप्रेशन लिखते हैं। नंबर फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट जो हम इस्तेमाल करते हैं, वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ, जो सब्स्टिट्यूट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन वैल्यूज from step third to calculate X, तो X निकालने के लिए ये X जो हम लेते हैं कि X amount of reactants have changed into products or X amount of products have been formed,
तो ये एक्स निकालने के लिए जो थर्ड स्टेप में हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालते हैं हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, तो वही वैल्यू जो वहां से हासिल होते हैं उन्हीं को सबस्टिट्यूट करते हैं इस इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, उन्हीं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन वैल्यूज को हम सबस्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन थर्ड में जो हासिल होते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स निकालने के लिए हम इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन वैल्यूज को हम इस्तेमाल करते हैं। वी आर सबस्टिट्यूटिंग द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन which is obtained in third step to determine the value of the x। तो ये मैं फिर से रिपीट करूंगा, थर्ड एप्लीकेशन इसकी क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होती है, इक्विलिब्रियम स्टेट पर जब रिएक्शन होती है, जब इक्विलिब्रियम स्टेट पर रिएक्शन पहुंचती है, when the reaction attains the state of equilibrium, तो इस इक्विलिब्रियम स्टेट पर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या है, ये चीज निकालने के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स निकालने के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स निकालने के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो किस तरह से, पहले हमें इंफॉर्मेशन होती है, जो चीज दिया गया होता है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कैसे हम निकालते हैं, पहले हमें मालूम होनी चाहिए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हमें मालूम होनी चाहिए। तो वी आर, if we know the initial concentration of the reactants, if the initial concentration of the various species, so we can then predict the equilibrium, उस फिर हम निकाल सकते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हर एक रिएक्टेंट और हर एक प्रोडक्ट की। तो क्या व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, जब आप कैलकुलेट करना चाहेंगे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पर पहुंचती है, तो जब इस इक्विलिब्रियम स्टेट इसने अटेन की, तो इक्विलिब्रियम स्टेट जब उसने अटेन की, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट, हम कैसे, वी हैव टू कैलकुलेट, वी कैन कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले हमें पहला चीज जो हमें मालूम होना चाहिए, दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इनिशियल कंसंट्रेशन हमें मालूम होनी चाहिए रिएक्टेंट्स की क्या है। जब हमें इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की मालूम होगी, तब जाके हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हर एक रिएक्टेंट और हर प्रोडक्ट की निकाल सकते हैं। किस तरह से निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें फॉलो करनी है कुछ रूल्स। पहला पॉइंट क्या है उस रूल का, पहले हम लिखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस जो रिएक्शन हमें है, दो चीज रिएक्ट हो गए, उनके लिए हमें बैलेंस, रिएक्शन हो गई, प्रोडक्ट्स बन गए, उसके लिए हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो पहला चीज है वी हैव टू राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दूसरा चीज क्या है, फिर हम लेते हैं, अगर रिएक्टेंट्स एक्स रिएक्टेंट्स हो रिएक्ट हो गए या एक्स प्रोडक्ट्स बन गए, तो वी आर अज्यूमिंग, दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, वी आर अज्यूमिंग दैट एक्स अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स हैव रिएक्टेड, एक्स अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स हैव रिएक्टेड, x will be having some definite value, x का कोई खास वैल्यू होगा, तो x amount of reactants have reacted और x amount of products have been formed। तो ये दूसरा चीज है, हम अज्यूम करते हैं कि x के बराबर रिएक्टेंट्स रिएक्ट हो गए या x अमाउंट के बराबर प्रोडक्ट्स बन गए। तो फिर हम क्या करते हैं, तीसरा चीज हम वी आर कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, फिर हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालते हैं of each reactant and product from the stoichiometry of the reaction। जो stoichiometry रिएक्शन की है, stoichiometry में इंफॉर्मेशन देता है कितने मोल्स ऑफ ए रिएक्ट हो गए, कितने मोल्स ऑफ बी के साथ, और कितने मोल्स सी के बन गए, कितने मोल्स डी के बन गए। इसका मतलब हो गया stoichiometry ऑफ द रिएक्शन। वी आर, जैसे हम जनरल रिएक्शन लिखते हैं, ए गिव्स ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी डी। A मतलब हो गया A moles of A have reacted to form we have reacted with B moles of B and they have formed C moles of C and D moles of D। ये A 1 के बराबर हो, 2 के बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, या B 1 के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। तो यही है स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, इसी का मतलब होगा स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। तो व्हाट वी आर थर्ड स्टेप हम क्या करते हैं, वी आर कैलकुलेटिंग the equilibrium concentration for each reactant and product from the stoichiometry of the reaction। stoichiometry जो रिएक्शन की है
उसी से हम निकालते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। तो फिर चौथा स्टेप क्या हम करते हैं, वी आर राइटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम केसी लिखते, एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लिखते हैं। तो जो ये इक्वेशन हम लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की कंसंट्रेशन निकल गई, तो हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो तीसरे स्टेप में हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हमने निकाले, अब ईच रिएक्टेंट प्रोडक्ट निकाले, तो उससे उन वैल्यूज से हम उन वैल्यूज को हम इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं इनमें सबस्टिट्यूट करते हैं, तो हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ एक्स। तो जब हम वैल्यू ऑफ एक्स निकालते हैं तो हम इनिशियल कंसंट्रेशन हमें मालूम होती है, तो हम बता सकते हैं कि किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी एट इक्विलिब्रियम स्टेट, किसी दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी एट इक्विलिब्रियम स्टेट, और किसी प्रोडक्ट की हर एक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी एट इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इस तरह से हम ये चीजें निकाल सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल्स, it will be very much clear to you. So that will be our next